Morning to all of you. This is Neha, your course teacher, which is an introductory agrometeorology and climate change. Okay, so let us start. So in our previous lecture, we have already studied about some atmosphere, है ना? Atmosphere, some introduction of atmosphere, uses of atmosphere in agriculture. Also, we studied about that, and then we reach out that some structure of atmosphere, isn't it? So we had already discussed about that two structure. Like first one is homosphere, and then second one is heterosphere. Okay, I hope you all remembering this thing. So our today's topic is structure of what mean atmosphere. Okay, so there are some structure, yeah. So in atmospheric structure has been divided in mainly two category. Okay, first one is homosphere and the second one is heterosphere. Okay, but on the basis of vertical temperature variation, atmosphere is divided into following spheres of the layer. ठीक है, spheres we could say spheres or layers also. So this is very big chapter. Structure of atmosphere is a very big chapter, so we will complete it in section wise. Okay, we will complete it in a section wise, likewise parts, different parts. Okay, because this is a very typical to understand. On remembering the thing, we need to there's some break. Okay, so okay, let us start. On the basis of vertical temperature variation, the atmosphere is divided into following spheres or layers also. And first one is which one? Troposphere. Okay, and the second one is stratosphere, then mesosphere, after then thermosphere, and then after exosphere. Beside this five, there are two other zones. Okay, ozonosphere and ionosphere. The top of each sphere is known as pause. ठीक है, so you know that stratosphere and mesosphere के जो बीच में मिलता है उसे हम ओजोनोस्फीयर कहते हैं. बट मेजरली जो स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू द वर्टिकल टेम्परेचर, जो मेनली जो है वो 4 सेक्शन में. फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. ठीक है, देन इन सब के अलावा हम ओजोनोस्फियर एंड आइनोस्फियर का भी देखेंगे. ठीक है, देन द टॉप ऑफ इच स्फीयर इज नोन एज पॉज. ठीक है, अब वो मैं आपको स्ट्रक्चर में बताऊंगी कि किसे पॉज कहते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. लेट्स सी विच इज़ द फर्स्ट वन. दीज आर स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर्स में बाद में आएंगे, पहले हम देखते हैं कि क्या है. ठीक है, तो आज हमने स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर देखना है. ठीक है, सो मूविंग ऑन. Okay, so we take first one troposphere in all of them, and we will study in two spheres. ठीक है, first one is troposphere and second one is stratosphere also. ठीक है, in detail. So okay, let us start. The word tropos means mixing or turbulence and sphere means region. ठीक है, ट्रोपो जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रोपो, इससे आप याद रखेंगे, आपको समझ आ जाएगा. जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है हमें कि ट्रोपोस्फियर, तो हमें ट्रोप मतलब पता है और स्फीयर मतलब पता है, तो हम ट्रोपोस्फियर में क्या होता है हम ये डिटेल कर सकते हैं. ठीक है, द वर्ड ट्रोपो मीन्स मिक्सिंग और टर्बुलेंस एंड मिक्सिंग और टर्बुलेंस. ठीक है, एंड स्फीयर मीन्स रीजन. ठीक है, अब बेसिकली हम कह सकते हैं कि ट्रोपो मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ गैसेस, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स. ठीक है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ गैसेस, यू कैन से दैट. ठीक है, देन स्फीयर मीन्स रीजन. ठीक है, स्फीयर मीन्स उस पर्टिकुलर रीजन, एरिया, कौन से स्फीयर से है वो. ठीक है, तो ये है. The average height of this lowermost layer of the atmosphere is about 12 km above the mean sea level. At the equator, it is 16 km and 7 to 8 km at the pole. Okay, as before I said that homosphere is 100 km at the sea level.
Are you remembering that thing? I hope you are. You need to remember this. This is very important. So then in troposphere, the average height of this lowermost layer of the atmosphere is about 12 किलोमीटर above mean sea level of. ठीक है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई जो है वो 12 किलोमीटर है. तो this is very important. Please highlight of this thing is 12 किलोमीटर also. And then at the equator, ठीक है, it is the 16 किलोमीटर एंड 7 to 8 किलोमीटर द पोल. ओके, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे, मैंने इसे पहले आपको बताया, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो आपको इक्वेटर और पोल समझ में आ जाएगा. ठीक है, इक्वेटर जो होता है वो बीच में एक सीधी लाइन जाती है, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं. ठीक है, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, और जो पोल होता है वो सब टॉप पोर्शन ऑफ द अर्थ. ठीक है, जो अर्थ का टॉप पोर्शन होता है, जब वो गोलाकार जो चपटा होता है उसका जो टॉप पोर्शन होता है उसको हम पोल कहते हैं. तो जो ट्रोपोस्फियर जो है उसका जो हाइट है वो क्या है, इक्वेटर से 16 किलोमीटर है, पोल से 7 to 8, अबाउट यू नो दैट, अबाउट 7 to 8 किलोमीटर. ठीक है, एंड देन it's a most lower layer. Troposphere is most lower layer of the atmosphere. ठीक है, so remembering this thing and mind it, always mind it. So these three things are 12 kilometer is above the sea level, 16 kilometer is equator, है ना, sea level is equator, and 7 to 8 kilometer at the pole. तो इतनी दूरी उसकी है. ठीक है, तो हमें 3 चीज़ याद करना है. क्या याद करना है हमें, सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे है वो. ठीक है, और इक्वेटर और पोल से कितनी ऊंचाई पे है वो. और एक चीज़ इसमें और इम्पॉर्टेंट है कि ये सबसे लोअर लेयर है एटमॉस्फेयर का. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, अंडर नॉर्मल कंडीशन द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन. ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन में वो अकॉर्डिंग टू द सीजन जो हाइट है वो क्या कहते हैं, फ्लक्चुएट कर सकता है. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन बोला है कि अबाउट इज़ नॉट एग्जैक्ट, अबाउट 7 to 8 किलोमीटर. हो सकता है बहुत सारे बुक्स वगैरह में जो वेरी करें. ठीक है, पर एकदम ज़्यादा वेरी नहीं कर सकते, ये 1-8 किलोमीटर चल सकता है. ठीक है, तो इस वजह से बोल रहा है कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर चेंजेस द प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन ऑल्सो. देन वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, thunderstorms, cyclones and anticyclones occurs in this sphere. Remembering this thing, okay? So this sphere, because of the concentration of the almost all the water vapor and aerosol in it, so this layer is called as seat of the weather phenomena. ठीक है, एरोसोल मैंने कल बताया था आप लोगों को कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे जो पार्टिकल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं उसको हम एरोसोल कहते हैं. ठीक है, तो ये दिस आर ऑल द इंटरकनेक्टेड, है ना, तो ये सब रिलेट करते हैं. तो ऐसा नहीं है, आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यू मस्ट वॉच इट. ठीक है, आपको वो देखने की ज़रूरत है क्योंकि आप उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, आपको पता नहीं होगा कि इसे कितने भागों में बांटा गया है, फिर उनको फर्दर कितने बार डिवाइड किया गया, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी. ठीक है, तो जंप करके आपको नहीं देखना है वीडियो, आपको सीरीज़ वाइज वीडियो देखना है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. ठीक है, तो यही कह रहा है कि यहाँ पे बहुत हमें एंटी साइक्लोन जैसी चीज़ें दिखाई पड़ती है इस लेयर पे. ठीक है, सो वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाउड, थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन वी कुड से occurs in this sphere also. Okay, so in this line aerosol is a very important. so इसको याद रखेंगे आप कि aerosol क्या होता है. कई बार छोटे नंबर में 2 मार्क्स वगैरह में ये एरोसॉल का डेफिनेशन पूछ लेता है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ सीट ऑफ वेदर फिनोमिना. ठीक है, इसको हम वेदर फिनोमिना भी कह सकते हैं. ठीक है, द विंड वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ हाइट एंड अटेन द मैक्सिमम एट द टॉप ऑफ दिस लेयर. ठीक है, सो जो विंड वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज़ होता है हाइट के हिसाब से. ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई पे हम जाते जाएंगे विंड वेलोसिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है. और द मैक्सिमम एट द टॉप ऑफ दिस लेयर. ठीक है, और जो इस लेयर का सबसे टॉप पोर्शन होता है उसमें जो मैक्सिमम होती है विंड वेलोसिटी. ओके, गॉट इट. मूविंग ऑन.
Okay, next is another striking feature of the troposphere is that there is a decrease of temperature with increasing elevation at about 6.5 degree per kilometer in lower layer and 6.7 degree per kilometer in upper layer. ठीक है, this phenomena is known as lapse rate of the temperature. This is very important. What is the lapse rate of temperature? कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, so remember this thing. Okay, another striking features of the troposphere is that there is a decreases of temperature with increasing elevation. ठीक है, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीजिंग होते जा रहा है, तो ये टेम्परेचर आपको याद करना है. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. हम देखते हैं, देखिए आप ट्रोपोस्फियर का आप जैसे देखेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो देखिए टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होते जा रहा है. ठीक है, सॉरी डिक्रीज होते जा रहा है. ठीक है, पहले क्या था 20 था. ठीक है, फिर ऐसे वो जो उसका वर्टिकल ग्राफ है वो बनता जा रहा है. ठीक है, जैसे जैसे हम हाइट में जैसे बढ़ते जा रहे हैं, अब देखिए हम 20 सेंटीमीटर की हाइट में हैं तो टेम्परेचर माइनस में है, फिर हम 40 में जा रहे हैं तो टेम्परेचर, तो माइनस आपको पता होगा, माइनस टेम्परेचर जो होता है प्लस टेम्परेचर से क्या होता है, छोटा होता है. ठीक है, तो आप देखिए इसमें, और जी ये ट्रोपोस्फियर जहाँ पे ख़त्म हुआ है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर जहाँ पे से ख़त्म हुआ, जहाँ से स्ट्रेटोस्फियर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो जो ख़त्म हुआ वाला जो पोजीशन है, जो एरिया है, उसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं. मैंने बताया था ना कि मैं बताऊंगी आपको आगे, जैसे यहाँ पे दिया द टॉप ऑफ द ईच स्फीयर इज़ नोन एज पॉज, तो इसे ही ट्रोपोपॉज कहते हैं. ठीक है, तो ये डायग्राम देख के आपको समझ आ जाएगा. सो मूविंग ऑन, most of the radiation received from the sun is absorbed by the earth's surface, so the troposphere is heated from below. ठीक है, तो बहुत सारे जो रेडिएशंस होते हैं, यूवी रेज वगैरह होते हैं, रेडिएशंस जो होते हैं वो सन के जो है होते हैं, वो अर्थ जो है उसको अब्जॉर्व करता है. ठीक है, अब्जॉर्व बाय द अर्थ सरफेस. ठीक है, जो अर्थ सरफेस होता है उसको अब्जॉर्व करता है, इस वजह से ट्रोपोस्फियर जो होता है वो क्या होता है, हीट होता है. ठीक है, तो बिलो मतलब नीचे की साइड वो हिट करता है. ठीक है, फिर इन दिस लेयर अबाउट 75% ऑफ टोटल गैसेस एंड मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, अब क्या होता है, इस लेयर में 75% जो होता है वो गैसेस में, जो टोटल गैसेस होते हैं, और बहुत सारे मॉइस्चर्स, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें याद रखने के लिए कि साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म, एंटी साइक्लोन जैसे जो वेदर एलिमेंट है वो हमको इस लेयर में दिखाई पड़ते हैं. ठीक है, इनका इक्वेटर से, पोल से जो हाइट है वो कितना है ये याद करने का है. व्हाट इज़ एरोसॉल ये याद करने का है इसमें. ठीक है, एंड देन व्हाट इज़ ट्रोपोपॉज ये आपको ध्यान में रखना है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये हर बार एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आपको पूछ लेगा, तो ये ध्यान में रखना है. जैसे आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है, एट द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर देयर इज़ अ शैलो लेयर सेपरेटिंग इट फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फियर विच इज़ नोन एज द ट्रोपोपॉज. मैंने आपको अभी इमेज में दिखाया कि जैसे ही हम टॉप पोर्शन में पहुँचते हैं किसके, ट्रोपोस्फियर से, तो जब वो ट्रोपोस्फियर ख़त्म होता है और सेपरेट करता है, इट फॉर्म द सेपरेट होता है, स्ट्रेटोस्फियर जो होता है वो स्टार्ट होता है, तो उस पॉइंट को हम ट्रोपोपॉज कहते हैं. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर द ट्रोपोपॉज लेयर इज थिन एंड इट्स हाइट changes according to the latitude and it is a transitional zone and distinctly characterized by no major movement of air. ठीक है, तो जब हम हाइट में, जब ट्रोपोस्फेयर के जब जो ट्रोपोपॉज का जो लेयर है काफ़ी पतली लेयर होती है. ठीक है, जो काफ़ी थिन लेयर होती है, और जो इसका हाइट जो है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू दी लैटिट्यूड. ठीक है, अब आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है ये सोचेंगे. ठीक है, तो जब हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं
तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइंस होते हैं जो उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज माइंड इट। एंड इट इज़ अ ट्रांजिशनल जोन इज डिस्टिंक्टली कैरेक्टराइज नो मेजर मूवमेंट। तो इस जगह पे, ठीक है, जो कैरेक्टराइज मेजर कैरेक्टराइज, तो इसको हाईलाइट करेंगे आप, ठीक है। हाईलाइट दिस लाइन, कैरेक्टराइज बाई नो मेजर मूवमेंट ऑफ द एयर। एयर का मूवमेंट मेजरली नहीं होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो ट्रोपोपॉज जो होता है वहाँ पे, कहाँ पे, ट्रोपोपॉज में थिन लेयर होता है हाइट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। लैटिट्यूड जो होता है वो चेंज होता है उसका, ट्रांजिशनल जोन है वो, ठीक है। जो इनका मेन कैरेक्टर है कि एयर का मूवमेंट थोड़ा कम होता है, मेजरली नहीं होता, ठीक है। एयर का मूवमेंट, ऑफकोर्स एयर का मूवमेंट होता है पर माइनरली, ठीक है। वी कुड से माइनरली एयर मूवमेंट होते हैं वहाँ पे, ठीक है। मूविंग ऑन, ओके। सो सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। So this layer exists above the tropopause around 15 kilometers onwards and extend to the altitude of about 50 to 55 kilometers. Okay, तो हमें फिर से पीछे जाना पड़ेगा और इमेज देखना पड़ेगा कि देखिए, आप देखेंगे कि ये जो लोअर स्ट्रेटोस्फियर है, अब देखिए जहाँ ट्रोपोपॉज ख़त्म हो रहा है और जो लोअर स्ट्रेटोस्फियर जहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है वहाँ पे काफ़ी कम टेम्परेचर है, देखिए आप, है ना, काफ़ी कम टेम्परेचर। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे जो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होते जाएगा, है ना, इंक्रीज़ होते जाएगा। तो ये आप इस डायग्राम को अपने माइंड में सेट कर लेंगे, ठीक है। इस डायग्राम को अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ याद करने, बस की पॉइंट्स आपको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि ये बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है। ये डायग्राम को हमेशा आप अपने माइंड में रखिए और इसके अकॉर्डिंगली आप फॉलो करें, ठीक है। So moving on, and what we see, okay, so this layer exists above the tropopause, ठीक है। तो ये अब एक्चुअली क्या है, ये 15 किलोमीटर, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑलवेज माइंड इट। एंड देन जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको ध्यान में, अगर इमेज आपको ध्यान में है तो आप याद कर सकते हैं कि अच्छा, हम जब जैसे जैसे हाइट में जा रहे हैं तो कौन से स्फीयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और कौन से स्फीयर का टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। तो आपको डायग्राम से समझ आ जाएगा, ठीक। दिस लेयर इज कॉल्ड एज सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। वहाँ पे क्या बोल रहे थे हम, सीट ऑफ डस्ट फिनोमिना, ठीक है, डिफरेंट फिनोमिना। और यहाँ पे क्या बोल रहे थे हम लोग, सीट ऑफ वेदर फिनोमिना। वेदर फिनोमिना में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स, रेन, ह्यूमिडिटी, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ये सारी चीज़ें जो होती है वो वेदर फिनोमिना में आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटोस्फियर को हम क्या बोलते हैं, सीट ऑफ वेदर फिनोमिना, और स्ट्रेटोस्फियर को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो वी कुड से दैट फोटोकेमिकल रिएक्शन इज initiate when light energy is absorbed by the substances molecules, ठीक है। and we could say that this response leads the molecule to experiment a temporary excited state, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है कि ये जो एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब्स होता है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, उसको इनिशिएट करता है, ठीक है, उसको लीड करता है, ठीक है। और क्या करता है कि एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देता है उसे, किसी एनर्जी को एक्साइटेड स्टेट में वो पहुंचा देता है। और क्या होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने सारे सब्सटेंसेस होते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, जिनकी क्या हो जाती है, फिज़िकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो उनका फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। Okay, then next, the temperature remains practically constant at around 15 to 20 kilometers and is characterized as isothermal because air is thin, clear, cold and dry near tropopause, ठीक है। तो then temperature remains practically constant around 15 to 20 kilometer, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 15 to 20 किलोमीटर तक टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये इसका मेन कैरेक्टर है, ठीक है। कैरेक्टर आइसोथर्मल, आइसो से समझ आ रहा है कि एक समान,
ठीक है, यूनिफॉर्मली वो चलता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। 15 to 20 रहना है तो 15 to 20 रहेगा, फ्लक्चुएट नहीं करेगा, ठीक है। बिकॉज एयर इज थिन, बहुत ही एयर इज थिन से आप क्या समझ रहे हैं, बहुत ही कम वेलोसिटी की, बहुत ही कम वेलोसिटी की, बहुत ही स्मूथ एयर चलता है, ठीक है। तो हम उसको थिन लेयर कह सकते हैं। क्लियर, कोल्ड एंड ड्राई नियर ट्रोपोपॉज, ठीक है। ट्रोपोपॉज के पास आपको जो एयर है वो क्लीन, कोल्ड और ड्राई, सूखी हवाएं, ठीक है, जो मॉइस्चर रहित हो, जिसमें मॉइस्चर नहीं हो, ऐसी हवाएं, ड्राई एयर जो है वो आपको ट्रोपोपॉज के पास दिखाई देंगी। तो ट्रोपोपॉज क्या है, स्ट्रेटोस्फियर और टोपोस्फियर, जहाँ से स्ट्रेटोस्फियर चालू होता है और जहाँ पे टोपोस्फियर ख़त्म होता है, ठीक है। एंड ऑफ द टोपोस्फियर एंड स्टार्टेड द स्ट्रेटोस्फियर, सो मिडिल रेंज इज व्हाट, middle range is called as tropopause, ठीक है। So that the temperature of this layer increases with height and also depends upon troposphere because of the troposphere is higher at the equator at the poles, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है हाइट के साथ, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, ट्रोपोस्फियर पे। क्यों, ट्रोपोस्फियर जो है वो एक उसका हायर, जैसे कि हर चीज़ का देखिए, इक्वेटर और पोल से कितनी ऊंचाई है ये इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर इज़ हायर एट इक्वेटर दैन द पोल्स, ठीक है। पोल से ज़्यादा ट्रोपोस्फियर जो है वो इक्वेटर से उसकी जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है, पोल से कम है। ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, आपको मैंने बताया ना कि पोल क्या होता है, टॉप, जो सबसे टॉप पोर्शन होता है अर्थ का, ठीक है। और जो इक्वेटर क्या होता है, जो मिडल पोर्शन होता है अर्थ का। तो ऑब्वियस चीज़ है जो कह रहा है कि ट्रोपोस्फियर इज़ हायर एट द इक्वेटर देन एट पोल्स, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो उसकी वजह से जो इस लेयर में टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाता है एज कंपेयर टू ट्रोपोस्फियर। ओके, you got it? Okay, I hope are you getting my point also, and these are enough for today because this is a very big chapter। तो ये हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे, इसे बहुत ही सीरियसली लेने की ज़रूरत है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, थोड़ी फिज़िक्स आपको समझनी पड़ेगी कि कैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इक्वेटर क्या है, पोल्स रीजन क्या होता है, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या होता है फोटोकेमिकल, मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कि क्या होता है कि जब भी लाइट जो है वो जब कोई मॉलिक्यूल या कोई सब्सटेंस जो है वो लाइट को, केमिकल रिएक्शन होता है, कैसे होता है, जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एब्जॉर्ब करता है यानी वी कुड से दैट अवशोषण करता है ना, हिंदी में आपको अवशोषण बोल सकते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करना को। तो जब वो अवशोषण करता है तो वो क्या करता है वो जो मॉलिक्यूलर जिसमें वो जिस सब्सटेंस में एब्जॉर्ब होता है, तो वो टेम्पररी जो होता है उस मॉलिक्यूल को एक्साइटेड स्टेज में पहुंचा देता है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेज में वो पहुंचा देता है और एक्साइटेड स्टेज में पहुंचाने की वजह से उस मॉलिक्यूल का, ठीक है, उस मॉलिक्यूल का जो कोर प्रॉपर्टी होता है, जो उसका एक्चुअल जो उसका प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टी होता है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, वो क्या होता है, इनिशिएट हो जाता है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपको सब समझ आया होगा। सो इसको आप रीड करेंगे, ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे आप मेटेरियोलॉजी का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये हमारे फिज़िक्स से रिलेट करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ है, पर अगर हम इसे समझें, याद करने के बजाय, हम रटने के बजाय अगर इसे समझें कि हमारे वेदर में क्या चल रहा है, तो ये हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।